हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर क्वेस्ट। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ 11th ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ MCQs ਨੂੰ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਗਿਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 6 to 14 ਇਅਰਸ 올ਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, 14 ਇਅਰਸ 올ਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, DPSPs ਦੇ ਵਿੱਚ। DPSPs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 86 2002 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 86 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, which of the following high courts exercise jurisdiction over Andaman and Nicobar Island। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ jurisdiction ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, 28 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਤੇ 8 ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਟੀਜ਼। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, 25 ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਸਾਡੀ ਯੂਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ jurisdiction ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ jurisdiction ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਕੈਲਕੱਤਾ jurisdiction ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਕੱਤਾ jurisdiction ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸਾਡੀ jurisdiction ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, 1862 ਦੇ
ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 62 ਈਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो एक्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में लास्ट वीडियो दे विच भी डिस्कस किया सी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिवें इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तो इलावा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तो इलावा ट्रिब्यूनल्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तो इलावा नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, दीज आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की गल करिए तो नीति आयोग हो गया साडा, नीति आयोग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारे की ने साडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये पता होने तो बाद तुहानूं इन्हां बॉडीज दे की पता होने चाहिए ने, आर्टिकल्स पता होने चाहिए ने। सबनों पता होएगा कि आर्टिकल लै जो इलैक्शन कमीशन का आर्टिकल किहड़ा है कि वो 378 है, 325 है, 324 है या फिर 323 है। तो सबनों पता होएगा कि इलैक्शन कमीशन की गल की गई है 324 दे विच। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। यूपीएससी की गल करिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसकी गल की गई है आर्टिकल 315 दे विच। ठीक है जी। ते SC STs की गल एक ही आर्टिकल 338 दे विच कीती गई है, 338 आर्टिकल दे विच। ते ट्रिब्यूनल्स दा जो आर्टिकल है वो इलैक्शन कमीशन तो पहला वाला है। तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे कि ट्रिब्यूनल्स किस आर्टिकल दे अंडर है साडे संविधान दे विच। ठीक है जी। सो ये चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है 324, आर्टिकल 324 है जो इलैक्शन कमीशन की गल करता है। हुण साडा जो इलैक्शन कमीशन है इस दे विच की काम करता है, साडे जो प्रेसीडेंट दे इलैक्शंस ने, साडे पार्लीमेंट दे इलैक्शंस, साडे वाइस प्रेसीडेंट दे इलैक्शंस जे साडे स्टेट असैंबलीज दी इलैक्शंस, ये सारियां इलैक्शंस इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे वल्लों ही हैंडल कीतियां जांदियां, सो कंडक्ट करवाइयां जांदियां। आपां गल कीती कि स्टेट असैंबलीज दी इलैक्शंस भी किदे द्वारा हुंदी है, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे द्वारा। तो जो इलैक्शन कमीशन ऑफ स्टेट है वो किस काम आउंदा है? अगर स्टेट दी इलैक्शंस इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाउंदा है तो इलैक्शन कमीशन ऑफ स्टेट की करदा है? इलैक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स जस्ट पंचायत दी इलैक्शंस नूं कंडक्ट करवाउंदा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल चीज़ां ये। पंचायत की गल किस आर्टिकल के अंडर की गई है? आर्टिकल 40 DPSPs दे विच साडे पंचायत की गल की गई सी। ठीक है जी। इस तो इलावा होर केड़े आर्टिकल्स ए तो लैके ओ आर्टिकल है, केड़ा आर्टिकल है वो तुसी मैनूं दसोगे कि किस आर्टिकल दे विच साडे पंचायत की गल की गई है। होपफुली तुहानूं एक क्वेश्चन क्लीयर होएगा। सो नैक्सट क्वेश्चन दे मूव करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है साडी अज दी सीरीज का, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन। पूछा गया एग्जाम दे विच पूछा जांदा है कि जिहड़ा प्रोजेक्ट, देखो छोटे छोटे क्वेश्चनस ने बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ने। पूछा गया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है कदों लॉन्च किया गया सी? टाइगर्स नूं बचाउण दे लई प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया सी, तो वो कित्थे कदों किया गया सी? 1973 दे विच। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। हुण भी पता होएगा कि कुनो नैशनल पार्क जो साडे कित्थे ने, कुनो नैशनल पार्क कित्थे साडी मध्य प्रदेश दे विच है। सो कुनो नैशनल पार्क जो मध्य प्रदेश दे विच है उस दे विच टाइगर इंट्रोड्यूस किए गए ने, 8 किए गए ने। ठीक है जी। जिहदे विचों 5 फीमेल्स ने ते 3 की ने
ਮੇਲਸ ਨੇ। ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਕਾन्हा ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅੰਕੇਸ਼ਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਅੰਕੇਸ਼ਵਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾर्क है, पेंच नैशनल पार्क है, सतपुड़ा नैशनल पार्क है, कूनो नैशनल पार्क हो गया, ठीक है जी। बांधवगढ़ नैशनल पार्क है, बांधवगढ़ नैशनल पार्क है। ये सारियां नैशनल पार्क्स तुहानूं याद होणियां चाहिदियां। किवें याद कर सकते हो? एक ट्रिक नूं याद कर सकते हो। कान्हा, ओमकेश्वर ते माधव एक किन्ना दे नाम ने? परमात्मा दे नाम ने, एक ही परमात्मा दे नाम। ये बंधन दे विच बन गए, ठीक है। बंधन दे विच बन के डायनासौर फॉसिल गए। होर किहड़ियां नैशनल पार्क है इत्थे? डायनासौर, ठीक है जी। डायनासौर फॉसिल एक नैशनल पार्क है, डायनासौर फॉसिल। सो मैं तुहानूं दस दिंदी हां कि इंडिया नैशनल पार्क्स मैनूं किवें याद ने, मैं किवें याद कीती है, मैं ट्रिक्स दे नाल याद कीती है। अगर तुहानूं ये ट्रिक चाहिदी है, इहदी वीडियो चाहिदी है तो तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दस सकदे हो, तो आपां तुहानूं ये वीडियो भी प्रोवाइड करवा दांगे। किवें याद कर सकदे हो कि मध्य प्रदेश दे विच किन्नियां तुहाडे कोल किने नैशनल पार्क्स ने? किवें याद करोगे? मैनूं पता है एक ही परमात्मा है, बट उहदे नाम अलग-अलग ने। कोई उसनूं कान्हा कह दिंदा है, ठीक है, कोई इसनूं ओम कह दिंदा है, कोई इसनूं माधव कह दिंदा है, ठीक है। ये तीनों भगवान एक ही बंधन दे विच बन के, बंधन दे विच बज के कित्थे गए? डायनासौर फॉसिल देखण गए, ठीक है। उत्थे 5-7 लोग थे, ठीक है, 5-7 लोग थे, ठीक है, जो पान वान खा रहे थे, जो पान वान खा रहे थे, जो पान वान खा रहे थे, और कोई नहीं था, ठीक है, और कोई नहीं था। तो तुसीं किवें याद कर सकते हो? कान्हा तो कान्हा नैशनल पार्क, ओम तो ओमकेश्वर नैशनल पार्क, माधव तो माधव नैशनल पार्क, बंधन तो बांधवगढ़ नैशनल पार्क, डायनासौर फॉसिल तो डायनासौर फॉसिल नैशनल पार्क, 5 तो पेंच नैशनल पार्क, 7 तो सतपुड़ा नैशनल पार्क, ठीक है, पान तो पन्ना नैशनल पार्क, वान तो वैली नैशनल पार्क, कोई तो कूनो नैशनल पार्क। ये सारे दे सारे की ने मध्य प्रदेश दे विच मिलते हैं। सो सारियां ही आपां नैशनल पार्क्स नूं वीडियोस ते ट्रिक्स दे नाल की कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सो नैक्सट क्वेश्चन है जी साडा, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया is constituted by the dash under article 280 of the constitution। जिवें तुहानूं याद होने चाहिए ने, इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 आर्टिकल के अंडर है, यूपीएससी आर्टिकल 315 के अंडर है। उसी तरीके दे नाल तुहानूं फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल भी याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंडर है। ये है जी साडा आर्टिकल 280 आर्टिकल के अंडर। ये फाइनेंस कमीशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंसिस्ट किवें कीता जांदा है, किस दे द्वारा बनाया जाता है जो फाइनेंस कमीशन है। ये तुहानूं पता होना चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है, पार्लीमेंट के द्वारा बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाया जाता है, या प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सबनों पता होएगा जो फाइनेंस कमीशन है ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच बॉडी? ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। हुण अगर प्रेसिडेंट बारे तुसीं गल कर ही रहे हो तो तुहानूं पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52 कहता है कि प्रेसिडेंट होवे। प्रेसिडेंट नूं की कीता जांदा है? इलैक्ट किया जाता है। इलैक्टेड मैंबर ऑफ लोक सभा, इलैक्टेड मैंबर ऑफ राज्य सभा, इलैक्टेड मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबलीज एंड इलैक्टेड मैंबर ऑफ दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। इस तो इलावा क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए? उन्हें अपनी उम्र के 35 साल पूरे कर ले होने चाहिए ने, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, किसी तरीके का प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड नहीं किया होना चाहिए। प्रेसिडेंट ओथ किस नूं देंदा है? प्रेसिडेंट ओथ देंदा है जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किस नूं देंदा है? रिजाइन देंदा है जी अपना वाइस प्रेसिडेंट नूं। इस तो इलावा इसनूं इंपीच, इसनूं रिमूव भी किया जा सकता है, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 61 के अंडर। इससे इंपीचमेंट का प्रोसैस आपां कित्थों अडॉप्ट किया? यूएसए तो अडॉप्ट किया। होर भी काफ़ी चीज़ां ने किनू किनू पॉइंट किया जाता, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ दस चुकी हाँ। प्राइम मिनिस्टर की गल की जाए तो प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 73 के अंडर आता है। सबनों पता होना चाहिए कि आर्टिकल 74 की कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि जो साडा प्रेसिडेंट है
ਉਹ ਵਿਦ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ते प्राइम मिनिस्टर दी एड एंड एडवाइस दे नाल काम करेगा। 75 की कहता है आर्टिकल 75 की कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किया जाता है सॉरी प्राइम मिनिस्टर है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा विद एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इस तो इलावा पार्लीमेंट की गल करिए आर्टिकल 79 की कहता है कि पार्लीमेंट किदे नाल मिलके बनती है केड़ी बॉडीज है लोक सभा राज्य सभा एंड प्रेसिडेंट नु कॉन्स्टिट्यूट होके की बनती है एक पार्लीमेंट बनती है। सुप्रीम कोर्ट की गल करिए तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। इसके कोल 131 आर्टिकल के अंदर ओरिजिनल यूरिस्डिक्शन है 32 आर्टिकल के अंदर रिट यूरिस्डिक्शन है ते आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोल केड़ी है एडवाइजरी यूरिस्डिक्शन है। होपफुली ये चीज़ां क्लीयर होंदियां होणगियां तुहानूं। नैक्सट क्वेश्चन है जी अज दी सीरीज आ द सिस्टम ऑफ रिजर्विंग सीट फॉर दलित्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वाज साइंड बाय महात्मा गांधी इन 1932 अंडर विच पैक्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी ते एज वेल एज तुहाडी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ की रहा क्वेश्चन की डिमांड की है फर्स्टली क्वेश्चन की डिमांड समझने की कोशिश करनी है आफ्टर दैट देखना है कि साडे जो ऑप्शंस ने वो की कह रहे हैं। क्वेश्चन की फर्स्टली डिमांड समझांगे डिमांड की कह रही है कि द सिस्टम ऑफ रिजर्विंग सीट फॉर दलित्स कहते जिहड़े दलित्स दे लई जिहड़ी सीट रिजर्व कीतियां जांदियां इन स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली कहते जिहड़ी विधान सभा दे विच दलित्स दे लई जिहड़ियां सीट रिजर्व कीतियां जांदियां जिहड़ा वो सिस्टम सी वो सिस्टम कदों लिया गया सी 1932 दे अंडर महात्मा गांधी ने एक पैक्ट साइन किया सी जिस दे विच कहा गया सी कि लैजिस्लेटिव असैंबलीज दे विच विधान सभा दे विच दलित्स दीयां जिहड़ियां सीट्स ने वो रिजर्व कीतियां जाणगियां। एक गलबात हुई सी जी 1932 दे विच ते 1932 दे विच की साइन किया गया सी सब नूं पता होएगा ये साइन होया सी जी पूना पैक्ट। ठीक है पूना पैक्ट साइन किया गया सी गांधी जी ने साइन किया सी डॉक्टर BR अंबेडकर जी दे नाल 1932 दे विच। इस तो पहला एक्चुअल दे विच की होया सी कि 1931 तो 1930 तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हो रही सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस हो रही सी 1930 दे विच होई 1931 दे विच होई ते 1932 दे विच जो साडी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। बट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं सी कर रही। पहली कॉन्फ्रेंस दे विच इंडियन नैशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उस तो बाद 1931 दे विच 5 मार्च ऑफ 1931 गांधी ते इरविन पैक्ट साइन होया जिस तो बाद गांधी जी 1931 वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नूं किन्ना दे बिहाफ के उत्ते इंडियन नैशनल कांग्रेस के बिहाफ के उत्ते अटेंड करन गए। बट उत्थे जदों उन्होंने देखा कि सब नूं सैपरेट इलैक्टोरेट देने की गल की जा रही है दलित्स नूं भी मुस्लिम्स नूं इन्हां ने पहलां दित्ता होया जिहदे नाल साडी कंट्री नूं डिवाइड करन दी गल की जा रही है। तो महात्मा गांधी जी सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छड्ड के भी वापस आ गए सी जिस तो बाद वो जेल दे विच चले गए सी उत्थे मरण वर्तन दे उत्ते बैठे ते उन्होंने पूर्णा पैक्ट साइन करवाया कि क्रिमिनल अवार्ड की कहते हैं कहते सैपरेट इलैक्टोरेट की की लोड़ है डिप्रैस्ड क्लासिस नूं आपां तुहानूं उन्हां सीट ही रिजर्व कर दांगे जो गल की गई पूना पैक्ट 1932 दे विच। ठीक है जी होपफुली गांधी इरविन पैक्ट तुहानूं पता होना चाहिए कि कदों आया सी 1931 दे विच मार्च 5 नूं यह साइन होया सी गांधी इरविन पैक्ट। होपफुली ये चीज़ां समझ आंदियां होणगियां। नेक्स्ट क्वेश्चन दे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद देखो मैं चीज़ां सब कुछ करवा चुकी हूँ हर एक चीज़ करवा चुकी ने MCQs दे विच बट विच उन्हां चीज़ां दे विच क्वेश्चन किवें बनने ने वो तुसीं देखते चलो मैं दसदी जा रही हूँ। क्वेश्चन तुहानूं हर बार मॉडिफाई करके प्रोवाइड किया जाता है। हुण ये क्वेश्चनस नूं बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बट आंसर हाले भी काफ़ी बच्चे ने जिन्हां नूं दिक्कत आएगी। पूछा की गया है कि 18th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे 18th पार्ट दे विच किस चीज़ का जिक्र किया गया है 18th पार्ट की गल की गई है। सबनों पता होना चाहिए कि पार्ट 18th दे विच की गल की गई है एमरजेंसी प्रोविजनस इन इंडिया दे विच जो एमरजेंसीज लगदी हैं अंडर आर्टिकल 352 अंडर आर्टिकल 356 अंडर आर्टिकल 360 इसकी गल की गई है
पार्ट 18th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किन्ने पार्ट ने जी एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स ने साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे। सबनों पता होना चाहिए कि जो साडी गल कीती गई है वो 18th पार्ट दे विच एमरजेंसी दी गल कीती गई है अंडर आर्टिकल 352 नैशनल एमरजेंसी लगती है किस बिहाफ दे उत्ते वॉर दे एक्सटर्नल एग्रैशन ते आर्म्ड रिबेलियन करके। इस तो इलावा आर्टिकल 356 है जिस दे विच स्टेट एमरजेंसी लगती है ते स्टेट एमरजेंसी किसे द्वारा लगती है क्यों लगती है आर्टिकल 356 ते आर्टिकल 365 दसदा है। फाइनैंशियल एमरजेंसी की गल 360 आर्टिकल दे विच कीती गई है जो अज तक साडी कंट्री दे विच कदे भी नहीं लगी। किवें लगती है क्यों लगती है मैं ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस तो इलावा फंडामेंटल ड्यूटीज की गल करिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज सानू पता है कि आर्टिकल 51A दे अंडर आती है। ठीक है जी, 4th A पार्ट दे अंडर आती है सारी फंडामेंटल ड्यूटीज। किन्नियां फंडामेंटल ड्यूटीज ने जी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ने। इन्हां नू ऐड किया गया सी 42nd अमेंडमेंट 1976 दे विच ऐड कीतियां गईयां सी। किन्नियां फंडामेंटल ड्यूटीज नू ऐड किया गया सी 10 नू। फिर साडी हुंदी है जी 86 अमेंडमेंट जिस दे नाल एक होर फंडामेंटल ड्यूटी नू ऐड किया गया सी। एट प्रेजेंट ने जी साडी 11 फंडामेंटल ड्यूटी किस कमेटी दे नाल कीतियां गईयां सी तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे। एस ते नाम है जी ऑफिशियल लैंगुएज ऑफ इंडिया। इस दी गल 8th शेड्यूल दे विच कीती गई है। जदों बने सी उदों 14 ऑफिशियल लैंगुएजेस सी, अज साडियां 22 ऑफिशियल लैंगुएजेस ने। अब लैंगुएजेस दे रिगार्डिंग एक 21st अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है 1976 दे विच होई सी, एक 71st अमेंडमेंट जो 1992 दे विच होई सी ते एक 92nd अमेंडमेंट जो 2003 दे विच होई सी। यह इंपॉर्टेंट चीज़ां ने। कहते सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इहदी गल शेड्यूल 2nd दे विच कीती गई है। नैक्सट क्वेश्चन है द प्लैनिंग कमीशन वाज सैट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तुहानूं पता है कि पहला की हुंदा सी कि एक कमीशन बनाया सी 5 ईयर प्लान्स जिहनूं किन्ना कहंदे सी। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स प्लैनिंग कमीशन कहा जाता सी। पूछा गया कि प्लैनिंग कमीशन बनया कदों सी तो आंसर होएगा ऑप्शन बी 1950 दे विच सी जो प्लैनिंग कमीशन बनया सी। इस तो बाद इस प्लैनिंग कमीशन नूं 2015 दे विच खत्म कर दिता गया सी। 1 जनवरी 2015 दे विच प्लैनिंग कमीशन दी रिप्लेसमेंट किसने की सी? नीति आयोग ने। किसने की सी? नीति आयोग ने। ते नीति आयोग दी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है। नीति आयोग दी फुल फॉर्म की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछा जाता है दी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। सो नीति आयोग ने रिप्लेस किया सी 5 ईयर प्लान्स नूं। कदों आए सी नीति आयोग? 1 जनवरी 2050। इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो साडी नीति आयोग है। इसनूं थिंक टैंक भी कहा जाता है। की कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। इहदा काम की हुंदा है नीति आयोग दा? नीति आयोग दा काम की हुंदा है स्ट्रैटेजिकल एंड टैक्नीकल एडवाइस देनी है किसनूं? स्टेट एज वेल एज साडी सेंटर नूं। एग्जाम दे विच पूछा जाता है कि इहदा काम की है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, ये पॉलिसीज नूं मेक करदी है ते इह टैक्नीकल ते स्ट्रैटेजिकल एडवाइस दिंदी है किसनूं? सेंटर नूं। हुण इन्हां दे विच जिहड़े ईयर दिखाई दे रहे ने कुछ इंपॉर्टेंस होएगी। 1949 की गल करिए तो नवंबर 26 1949 नूं साडा जिहड़ा संविधान सी वो अडॉप्ट कर लिया गया सी। 1950 26 जैन नूं इस नूं लागू कर दिता गया सी। सो नैक्सट है जी साडी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है 28 जनवरी 1950 नूं ही बनी सी। नैक्सट क्वेश्चन है कहते डैश मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसीडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट बिफोर दैट। ये मैं बहुत बार चीज दस चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन की डिमांड समझो कि क्वेश्चन पूछ की रहा है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कहते उस यूरिस्टिकेशन नूं किहड़ी यूरिस्टिकेशन कहा जाता है जिहदे विच सानू लोअर कोर्ट कोल जाण दी लोड़ नहीं पैंदी, सीधी असीं अपैक्स कोर्ट दे विच जाके अपनी जो अपील है उस जो अपनी जो भी शिकायत है उसनूं दर्ज कर सकते हैं। सीधा अपैक्स कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किन्ना केसेस दे विच जाने आ? फंडामेंटल राइट्स दे केसेस दे विच जाने आ, किसी स्टेट्स दे विच वाटर डिस्प्यूट होवे उन्हां केसेस दे विच जाने आ, ਜਾਂ फिर कोई सेंटर दा स्टेट दे नाल डिस्प्यूट होवे ਜਾਂ स्टेट दा स्टेट दे नाल डिस्प्यूट होवे। इन्हां केसेस दे विच असीं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 131 ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 131 131 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਰੀਜਨਲ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਟ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 143 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, an individual who is not member of either house of parliament, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, can be appointed as the member of council of minister, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, but he must become the member of either house in how many months, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਈਦਰ ਹਾਊਸ ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇਗਾ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਸ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। I ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ, P ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਪੈਨਲ ਤੇ C ਫॉर ਕੋਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, ਆਪਸ਼ਨ C is a right answer of this question, option C is a right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी होंगे, स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट उतना इजी क्वेश्चन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आज दी सीरीज ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम लिबर्टीज टू द इंडियन सिटीजन्स, कहते इंडिया का संविधान है जो वो इंडियंस नू अलग-अलग तरीके दी आजादियां दिंदा है, ठीक है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सिटीजन इज फ्री टू द लिबर्टी, कहते नीचे दित्तियां दे विचों केड़ी आजादी है जिहड़ी साडी इंडियंस नू नहीं दित्ती गई। लिबर्टी किस, देखो फ्रीडम, ये साडी जो फ्रीडम है साडी फंडामेंटल राइट है। केड़ा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। किस केड़े आर्टिकल्स दे अंडर आउंदा है, आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22, इन्हां आर्टिकल्स दे विच सानू राइट टू फ्रीडम मिलिया होया है। आर्टिकल 19 दे अंडर डिफरेंट क्लॉसेस ने, 6 क्लॉसेस ने, A, B, C, D, E, F एंड G, ਇਹ क्लॉसेस ने जिन्हां दे विच सानू डिफरेंट फ्रीडम्स मिलिया होईयां। जिवें 19 आर्टिकल A क्लॉज दे अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मतलब एक्सप्रैशन, अपनी स्पीच देने दी, एक्सप्रैशन दी पूरी आज़ादी है। नैक्सट इज राइट टू फॉर्म, सॉरी, राइट टू गैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी दे विच की है, टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। डी की है, असी किसी भी जगह के उत्ते फ्रीली मूव कर सकते हैं। नैक्सट ई की है, किसी भी जगह के उत्ते जाके असी रिसाइड कर सकते हैं। एफ असी कट्टिया होया, जी है कि असी किसी भी तरीके दे प्रोफैशन नू चूज कर सकते हैं, साडी ओह है, चाहे वह बिजनेस चाहे टीचर कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट है हिज एक्सप्रैशन एंड स्पीच, ये तो सानू पता है आर्टिकल 19 क्लॉज ए दे अंडर साडी फ्रीडम हैगी है। नैक्सट है टूगैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, कहते असी इकट्ठे हो सकते हैं, सारे इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली बट विदाउट आर्म्स, उन्हां तो बिना, हथियारां तो बिना, ये भी गल आर्टिकल 19 बी क्लॉज दे विच कीती गई है। नैक्सट टू परचेज एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, जिस दे विच रिसाइड है ना, देखो बी दे विच असी पीसफुली गैदर हो सकते हैं, सी दे विच असी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, डी दे विच किते भी जा सकते हैं। ये जिहड़ी फ्रीडम है ये 19 आर्टिकल ई क्लॉज दे अंदर दित्ती गई है। नैक्सट है कहते टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मैं तुहानूं दस्सिया
कि जो साडा जी क्लॉज है वो की कहता है कि असी किसी भी तरीके दे प्रोफैशन नू ऑप्ट कर सकते हैं, बट जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है कि असी उही बिजनेस नू ऑप्ट कर सकते हैं जो साडी गवर्नमेंट दी किसी बनाई गई लिस्ट दे विच लिखा होवे। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, इस ए कोई फ्रीडम नहीं है साडी, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली कोई फ्रीडम नहीं है साडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अज दी सीरीज का, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लीमेंट एंड इट्स मैंबर। इस बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की है कि प्रिविलेजेस ऑफ पार्लीमेंट की गल किस आर्टिकल के अंडर की गई है। देखो ये तुहानू पता होना चाहिए, प्रिविलेजेस दो तरीके दी प्रिविलेजेस ऑफ पार्लीमेंट हुंदी है, जिन्होंने एक इंडिविजुअल हुंदी है, एक कलैक्टिव प्रिविलेजेस हुंदी है। इन्हां प्रिविलेजेस नू इंजॉय कौन करता है? पार्लीमेंट के मैंबर एज वेल एज एक एवें दा मैंबर नाउ गवर्नमेंट इंप्लॉय है ना पार्लीमेंट का मैंबर है, दैट इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76। सो ये जो पावर्स ने ये आर्टिकल 105 एंड 194 दे विच दित्तियां गई हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर इन द इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी मैनू कमेंट बॉक्स विच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेन्योर ऑफ मैंबर इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहते जिहड़ा इलैक्शन कमीशन है अंडर आर्टिकल 324, कहते जिहड़े उहदे मैंबर ने उन्हां दा टेन्योर किन्ने साल दे लई हुंदा है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर 6 ईयर। और 6 ईयर किहदा हुंदा है? कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अंडर आर्टिकल 148। इन्हां सब दा जिहड़ा टेन्योर है वो 6 ईयर हुंदा है। होपफुली तुहानू ये क्वेश्चंस बहुत वधिया ते बेनीफिशियल लगे होणगे। अगर बेनीफिशियल लगे ने तो जिहड़ी क्लास है सारे बच्चों दे विच शेयर करो तां जो सबनूं ये क्लास मिल सके, सब दा भला हो सके। ठीक है, कर भला हो भला। सो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, मिलदे हैं नेक्स्ट लैक्चर दे विच।